السلام علیکم 7 نیوز کے ساتھ میں ہوں فہیم چودھری۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمان میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صومالین ہم منصب سے اہم ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے عمان میں منعقدہ اجلاس کے موقع پر صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عبدی علی سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور صومالیہ کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر سیاسی، اقتصادی، دفاعی، تعلیمی اور استدعاء کار بڑھانے میں اضافے کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ عالمی اور کثیر الجہتی فورمز پر باہمی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ گفتگو کے دوران دونوں وزراء خارجہ نے علاقائی پیش رفت بالخصوص مشرق وسطی یروشلم کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ابھی کچھ بات کریں گے جشن آزادی پر۔ آپ کو بتائیں کہ شہر پاکستان کے 80ویں یوم آزادی کو منانے کے لیے بچے، بڑے اور نوجوان سبھی پرجوش ہیں۔ بازاروں میں سبز سفید رنگوں کی بہار آئی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر سٹال سج چکے ہیں۔ شہری بڑی تعداد میں مختلف قسم کے جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز خریدنے میں مصروف ہیں۔ There is conflict even now, make no mistake, but this is an attempted annexation by stealth. I keep on saying attempted because I do not accept this reality, and nor must you, nor must Pakistan. So, where do we stand today? New Delhi has issued more than 4.2 million domicile certificates to non-Kashmiris. And it is our job and our responsibility to remind people that when India calls whatever it has done by fiat and state force and coercion, what it calls a resolution, in fact, is annexation, attempted annexation by stealth. That is exactly what it is. If other countries do it, there is a furor. There is conflict. And there is conflict even now, make no mistake. But this is an attempted annexation by stealth. I keep on saying attempted because I do not accept this reality. And nor must you, nor must Pakistan. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام کہا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اپنے شہری کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کے جائز حق کی خودارادیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ بھارت کا 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ مزید کہا، کشمیری بہن بھائیوں پر بھارت کے جاری مظالم، کریک ڈاؤن اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مسئلہ کشمیر کا کشمیری امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے میں کردار ادا کرے۔ 5 اگست 2019 جنوبی ایشیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ بھارت کی غیر قانونی اقدامات عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام کہا، کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی اور طاقت اور جبر سے دبانا نہیں جا سکتا۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا فوری نوٹس لے۔ مزید کہا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی حق کے خودارادیت دیا جائے۔ پاکستان کا ہر شہری اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ 5 اگست بھارت کے سیاہ اقدامات کی یاد دلاتا ہے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ کا یوم استحصال کشمیر پر اہم پیغام۔ کشمیری عوام کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں کشمیری عوام کے حق کے خودارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں۔ عالمی برادری نوٹس لے، کشمیری پاکستان کے دل کے بہت قریب ہیں۔ کشمیری عوام کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ہی خطے میں پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ 5 اگست انسانی حقوق کی پامالیوں کی المناک یاد ہے۔ کشمیر امن، انصاف اور حق کے خودارادیت کا مسئلہ ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا کا اہم پیغام۔ کہا، عالمی برادری خاموشی ترک کرے، مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ مذہب، نسل یا عقیدے سے بالاتر ہو کر انسان کو آزادی اور بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں، سکھوں، ہندو اور دیگر تمام شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔
یوم شہدائے پولیس آئی جی پنجاب عبدالکریم کیپٹن سید احمد مبین شہید کی مرکز پر حاضری خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر پولیس افسرانوں اور اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہدائے پولیس کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں آئی جی پنجاب عبدالکریم نے سینئر پولیس افسران کے ہمراہ گراؤنڈ میں ڈی آئی جی کیپٹن سید احمد مبین شہید کی قبر پر حاضری دی، پھول بھی چڑھائے۔ اس موقع پر سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ، ڈی آئی جی ٹریفک، ڈی آئی جی ایڈمن اور سی ٹی او لاہور سمیت دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بڑا کریک ڈاؤن، 1600 کلو گرام مضر صحت میونیز تلف کر لی گئی ہے۔ قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ میلسی میں کمسن بچوں پر مبینہ تشدد کی ویڈیو وائرل، ڈی پی او وہاڑی کے نوٹس پر ملزم گرفتار، پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تشدد میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقامی مکینک نے 9 سالہ سفیان اور 12 سالہ عمیر کو مبینہ طور پر چوری کے الزام میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی ویڈیو منظر عام آنے کے بعد پولیس متحرک ہوئی۔ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں پر تشدد اور قانون ہاتھ میں لینے والے کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ بچوں کے حقوق کی پامالی اور تشدد کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق بلا امتیاز سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ لاہور میں ہربنس پورا ڈبل مرڈر کیس کا مرکزی ملزم پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورا میں دوہرے قتل، خواتین کے قتل کے افسوسناک واقعے میں پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے مرکزی ملزم محمد اورنگزیب کو گرفتار کر لیا۔ ملزم پر مبینہ طور پر اپنی والدہ اور ہمسایہ خاتون کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن رحیلہ اقبال اور ایس ڈی پی او وجیہہ الحسن باری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر واردات پر پہنچے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے اس واقعے میں 2 لڑکیاں عائشہ اور عرفہ شدید زخمی ہوئیں، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والا آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات 2026 کے سلسلے میں حلقہ LA-35 کے سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ ریٹرننگ افیسر کی جانب سے جاری کردہ فارم کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار چوہدری محمد اسماعیل نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ جو میرا الیکشن ہے، یہ میں اپنے ورکر، اپنے حلقے کے لوگ پاکستان کے نام یہ سی کرتا ہوں۔ حلقے میں کل 142 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے، جہاں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 87,274 تھی۔ انتخابات میں کل 36,649 ووٹ ڈالے گئے، جن میں درست پول شدہ ووٹس کی تعداد 36,105 جبکہ 544 ووٹس مسترد ہوئے۔ اس حلقے میں ووٹنگ شرح 42% رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری محمد اسماعیل نے شہر کے انتخابی نشان پر 24,318 ووٹ حاصل کر کے میدان مار لیا۔ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار سردار محمد ریاض فٹ بال کے نشان پر 5,965 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے۔ دیگر امیدواروں میں استحکام پاکستان پارٹی کے عبدالقدیر کو 2757 ووٹ ملے، کشمیر یونائٹڈ جموں موومنٹ کے وسیم صادق کو 762 ووٹ ملے، جماعت اسلامی کے سردار ساجد الرحمان کو 650 ووٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد آصف کو 620 ووٹس ملے۔ حلقے کے باقی آزاد امیدوار اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں میں سے کوئی بھی 1000 کا ہندسہ عبور نہ کر سکا۔ چودھری محمد اسماعیل نے اپنے قریبی حریف کو 18,000 سے زائد ووٹس کے بھاری مارجن سے شکست دے کر یہ نشست اپنے نام کی ہے۔ یہ جو میرا الیکشن ہے، یہ میں اپنے ورکر، اپنے حلقے کے لوگ پاکستان کے نام یہ سی کرتا ہوں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت کامیاب امیدواروں میں الاٹمنٹ لیٹرز کی تقسیم۔ مزید تفصیلات بیورو چیف مولک آصف کی اس رپورٹ میں۔ خانیوال میں بھی اپنا کھیت اپنا روزگار سکیم کے تحت کامیاب ہونے والے امیدواروں میں الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پارلیمنٹری، سرکاری افسران اور
मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान स्कीम में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। मुकर्ररीन का कहना था इस स्कीम का मकसद नौजवानों को ज़री शोबे में बाख्तियार बनाकर इन्हें अपना रोजगार के मौके फराहम करना है। सनद जो है वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, वो बेसिकली उनके लिए एक मौका है कि उस मौके से फायदा उठाते हुए वो अपने और अपनी फैमिली के लिए आसानियां पैदा करें। हमारे 225 ऐसे विनर्स हैं जिनको असनाद तकसीम होनी है, उसमें से कुछ के जिनके किसी के सरकारी मुलाजिम होने या किसी और गलती कमी की वजह से तकरीबन हम 200 लोगों को आज असनाद दे रहे हैं। शुरा से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था हुकूमत नौजवान और किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है ताकि ज़री शोबा को मजीद मजबूत बनाया जा सके, खुद रोजगार के मौके में इजाफा हो। मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम विनर्स को भी और खिराज तहसीन पेश करता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। जिनके पास पहले खेत नहीं है, जिनके पास रोजगार के मसाइल हैं, तो उनको कुरानंदाजी में डाल के ये है कि कोई फेवरेट, कोई बायस, कोई नहीं, सबको इक्वल चांस दिया गया है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत कामयाब उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट की तकसीम न सिर्फ इनकी हौसला अफजाई का बाइस बनेगी, बल्कि ये इकदाम नौजवानों को ज़री शोबे में आगे बढ़ने और बाइज्जत रोजगार हासिल करने की जानिब एक अहम पेशरफ्त भी करार दिया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मलिक आसिफ, ब्यूरो चीफ, 7 न्यूज़, खानेवाल। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर इंतजामिया की जानिब से यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान में इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने कश्मीर के हक में फलक शगाफ नारे लगाए, उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। रैली के शुरका ने हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत दर्ज थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा, 5 अगस्त 2019 का दिन जनूबी एशिया की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है, जब भारत ने गैर कानूनी इक़दाम के ज़रिए कश्मीर की कानूनी हैसियत पर डाका डाला। अभी आपको बताएं कि लियाकतपुर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा ने की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ गुलाम मोहिउद्दीन से। जी गुलाम मोहिउद्दीन, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से जो है ना आज म्युनिसिपल कमेटी से जो है ना रैली का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा ने की है। इस वक्त रैली के शरका जो है मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। सर बताइएगा इस दिन के बारे में। जी, ये दिन 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया और एक तरह से उसने सब कौन मारा दोबारा 1948 के बाद दोबारा जो है, उसके खिलाफ जो है ये कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए ये रैली निकाली जा रही है और पूरी पाकिस्तानी कौम ये बावर कराना चाहती है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और रहेंगे। देखिए जी, और भी शरका मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात करें। सर इस दिन के हवाले से बताएगा और रैली के हवाले से बताएगा। देखिए, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बुनियाद पर हम पहले दिन से कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, उनकी हक़ खुद इरादियत के साथ खड़े हैं। इंडिया ने जो है वो ताकत के बलबूते पर वहाँ पे जुल्म की इंतहा की हुई है और मजलूम कश्मीरियों पे कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस दिन के हवाले से और रैली में आप भी शरीक थे? तो जी, जब ताकत उनकी कमज़ोर पड़ गई और ताकत से वो काबू नहीं पा सके, उसके बाद उनके ऊपर एक शबखून मारा गया, आइन में तब्दीली की गई और उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। लेकिन हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि वो जो मर्जी कर ले, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन जो रैली के शरका से उनका यही कहना था कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, था और रहेगा। ये जो रैली है म्युनिसिपल कमेटी से शुरू हुई, मुकर्रर रास्तों से होती हुई 4 घंटा घर, उसके बाद दोबारा म्युनिसिपल कमेटी पर इख्तिताम पजीर हुए हैं। शहरियों ने बड़ी तादाद में जो है इस रैली में शिरकत की है। जी, लियाकतपुर की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर सक्खर में भी 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ज़िली इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सिविल इंतजामिया के साथ साथ मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ अब्दुल हमीद दल। जी अब्दुल हमीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर में, जहां पर आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तरफ मनाया जा रहा है पूरे सक्खर में। हमारे साथ डीसी कमिश्नर मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। सर, आपने बताया आज जो रैली निकाली इसके हवाले से बताया क्या मैसेज?
देखिए सखर की तमाम आवाम ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, जवान सब लोग निकले हैं इसी बात के लिए कि अपने कश्मीरी बहनों को, भाइयों को ये पैगाम दें कि हम उनके साथ खड़े हैं, हमने उन्हें छोड़ा नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं इस तरह की रैलीज़ का इनेकाद किया जा रहा है। ये हम सिर्फ इतना ही अमली तौर पर जो इस वक्त मदद हम कर सकते हैं, मॉरली तौर पर कश्मीरी बहन भाइयों की, हम तमाम लोग वो करने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह इस जद्दोजहद का हिस्सा बन, जैसे हमारी नस्लें बनती रही हैं, बनती रहेंगी जब तक हमारे कश्मीरी बहन भाई हिंदुस्तान के चंगुल से आज़ाद नहीं होंगे। जी, आपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का मौक़िफ़ सुना, उनका यही कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। जब तक कश्मीर पाकिस्तान के सामने में पाकिस्तान का बच्चा उनका साथ देगा, और भारत अगर कोई भी जाहिरत करेगा उसका जो पाकिस्तान का हर बच्चा उसका मुकाबला करे। हम पाक के साथ शान बशा खड़े हैं और हमेशा पाकिस्तान जगह बच्चा उसके साथ शान बशा खड़ा रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद दल, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर समड़ियाल में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी रैली कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम पेश किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल की ज़ेर निगरानी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी आवाम से यकजहती के लिए तहसील कॉम्प्लेक्स से एक पुरज़म रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलूम कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइच की क़यादत में निकाले जाने वाली इस रैली में अंजमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, रेस्क्यू 1122, सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। उधर शक्करगढ़ में 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर तहसील इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई। मुल्क भर की तरह शक्करगढ़ में भी 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर तहसील इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मियां अदनान आतिफ की ज़ेर निगरानी ये रैली एसी ऑफिस से शुरू होकर अल्लाहू चौक तक निकाली गई, जिसमें कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। रैली में तहसील इंतजामिया के अफसरान, सरकारी अदारों के नुमाइंदगान, अंजमन ताजरान के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्मीरियों के हक खुदरादियत के हक में नारेबाजी की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मियां अदनान आतिफ ने कहा कि भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। शहरी यौम आज़ादी को मनाने के लिए बच्चे, बड़े और नौजवान भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। बाजारों में हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई है। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ सुहेब हसन। जी सुहेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चंद रोज ही बाकी हैं। 14 अगस्त की आमद के साथ पंजाब भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। सब्ज हलाली परचमों, लाइट्स और झंडियों से बाजार सज चुके हैं। बच्चे और बड़े पर जोश दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आपकी 14 अगस्त के हवाले से कैसी तैयारियां हैं। भैया हमारी बहुत जोशो खरोश से 14 अगस्त की तैयारी है। बस लोगों का आने जाने का रुझान आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। झंडे ले लिए हैं, बाजा ले लिया है और कलर वगैरह ले लिए हैं मुंह पे लगाने के लिए। और पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपने डैडी के और है ना ऑफिस पे जाके सेलिब्रेट करेंगे। घर आकर है ना अपने भाइयों के साथ फिर करेंगे सेलिब्रेट। पाकिस्तान ऐसी ज़मीन हो आसमान दे पाकिस्तान जा जा आगे से ऐसी ज़मीन हो आसमान पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो जैसा कि आपने देखा पूरे पंजाब में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर जा रही हैं। बच्चे बड़े खुश हैं। बच्चों ने अभी झंडियां लेनी भी हैं और कुछ बच्चों ने ले भी ली है। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज सुनाई दे रही है। बच्चों का यही कहना है कि इस बार भी हम 14 अगस्त बड़े भरपूर तरीके से मनाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सुहेब हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, जंग के इलाके कुड़ीवाला में अफसोसनाक हादिसा, 8 साला बच्चा करंट लगने से जाँ बहक। जंग के इलाके कुड़ीवाला में अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां करंट लगने के बायस 8 साला बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। ज़राए के मुताबिक 8 साला बच्चा अली अब्बास करंट की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा।
बस्ती मलूक में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बीट 19 के ज़ेर एहतमाम योम शोहदाए पुलिस अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीब में शोहदाए मोटरवे पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के शहीदा को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि शोहदाए पुलिस और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर तादाद में शिरकत की है। तफसील बताएंगे ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ मोहम्मद काशिफ भट्टी जी। काशिफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल 5 अगस्त पूरे पाकिस्तान की तरह कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए इस यौम एहतसाब के तौर पर मनाया जा रहा है। सादकाबाद में भी एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद असिस्टेंट कमीशन सादकाबाद और सीओ बल्दिया सादकाबाद के क़ियादत में किया गया है। मेरे साथ इस वक्त सुथरा पंजाब के डायरेक्टर हाफिज गुलाम गौस साहब मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा। जी, आज सादकाबाद में यौम यकजहती कश्मीर जो रैली का इनेकाद किया गया है, इनकी क़यादत असिस्टेंट कमीशनर सादकाबाद कर रहे हैं और हम पैगाम देना चाहते हैं जो हक कश्मीरी भाइयों का है उनको दिया जाए और हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हमारे शहर का हर बच्चा, हर कम्यूनिटी, स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी अदारे हैं सब कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। उस वक्त तक साथ रहेंगे जब तक उनका हक दिया ना जाए। हाँ जी, बिल्कुल इनका यही कहना था कि कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा है और पूरे सादकाबाद की आवाम इनके साथ शाना बशाना खड़ी है और जब तक इनको अपना हक नहीं मिल जाता हम इनके साथ खड़े रहेंगे। जी। फैसलाबाद के इलाके मकसूदाबाद में नवाबा वाला रोड पर वाक़े मकान में एयर कंडीशन के इंडोर में गैस लीक होने की वजह से अचानक आग भड़क उठी। आतशदगी के इस खौफनाक वाक़े में एक ही घर के 7 अफराद शदीद झुलस गए। वाक़े की इत्ला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। आतशदगी के बायस मुतासिर होने वाले 5 अफराद को अहल खाना जबकि 2 अफराद को रेस्क्यू टीम ने बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक झुलसने वालों में 35 साल अदनान का जिस्म 80% झुलस गया था, जबकि समरा जैन का 30% हिस्सा मुतासिर हुआ। दोनों शदीद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फैसलाबाद के इलाके मकसूदाबाद में नवाबा वाला रोड पर वाक़े मकान में एयर कंडीशन के इंडोर में गैस लीक होने की वजह से अचानक आग भड़क उठी। आतशदगी के इस खौफनाक वाक़े में एक ही घर के 7 अफराद शदीद झुलस गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। एसी गैस लीकेज से घर में खौफनाक आग भड़क उठी, 7 अफराद झुलस गए हैं। फैसलाबाद के इलाके मकसूदाबाद में नवाबा वाला रोड पर वाक़े मकान में एयर कंडीशन के इंडोर में गैस लीक होने की वजह से अचानक आग भड़क उठी। आतशदगी के इस खौफनाक वाक़े में एक ही घर के 7 अफराद शदीद झुलस गए हैं। वाक़े की इत्ला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच चुकी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ समीर अंतर से। जी समीर अंतर, क्या अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा। डाली गई थी एसी के अंदर जिसके बाद जो है वो लीकेज जो है वो हुई है। लीकेज के बाद इंडोर जो है वो फटने से 7 अफराद जो है वो झुलस गए हैं। इंडोर जैसे ही फटा है तो घर में आग भड़क उठी। 8 अफराद जो हैं वो रेस्क्यू 1122 ने उनको तिब्बी इमदाद के लिए फैसलाबाद के इलाइड अस्पताल में भी मुंतकिल कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि तिब्बी मुआयने के बाद जो है वो बताया जा सकता है कि इनकी हालत जो है वो काफी फिलहाल तफ्तीशनाक डॉक्टरों की जानिब से बताया जा रहा है। दूसरी जानिब ये हमारे जराए बता रहे हैं कि इन्होंने एसी के अंदर सस्ती गैस डाली थी, जिसके बाद जो है वो लीकेज हुई। लीकेज जो है वो ऐसी हुई कि जब एसी ऑन हुआ तो एकदम से धमाके की आवाज आई है। धमाके के नतीजे में घर में आग लग गई। आतशदगी के नतीजे में 7 अफराद जो है वो इस आग में झुलस गए हैं। जी, 7 अफराद झुलस गए। समीर अंतर, जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स तो यही बताते हैं कि अभी जो है वो इनकी बॉडी 60% तक जो है वो झुलस चुकी है। अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ट्रीटमेंट जो है वो लाइड अस्पताल 1 सेंटर में उनका जारी है। डॉक्टर्स जो है वो बर वक्त वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ने उन्हें जो है वो फौरी तौर के ऊपर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया था। वहां पे उनका तिब्बी जो है वो इलाज जो है वो जारी और सारी है। जी,
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पेशावर में महकमा तलात की ज़ेरे एहतमाम योम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। पेशावर में DG इंफॉर्मेशन इनसार खलीजी की क़यादत में महकमा तलात और ताल्लुकात आमा की जानिब से योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर पुरअज़म रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया, उनकी जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। रैली के दौरान शुरका ने शोहदाए कश्मीर की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए उनके एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इस मौका पर DG इंफॉर्मेशन का कहना था कि पाकिस्तान हर आलमी और इलाकाई फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की हमायत जारी रखेगा। उकाड़ा में योम शोहदाए पुलिस के मौका पर यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। DPO असद एजाज ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा के दराजात बुलंदी और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। DPO असद एजाज का कहना है कि शोहदाए पुलिस हमारे मोहसिन हैं, कौम उनकी मकरूज है। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से पंजाब पुलिस का सर फख्र से बुलंद हुआ। शोहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियां नाकाबिले फरमोश है। सरबुलंदी की ये दिस्तार हमारे पास शोहदा की अमानत है। अभी आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि उकाड़ा में ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। उकाड़ा में अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स मौके पर ही जम बहक हो गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। पुलिस हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर हादसे के शिकार शख्स की लाश तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दी है। योम इस्तेहसाल कश्मीर पर DC ऑफिस में तकरीब और वाक कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी 5 अगस्त योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। DC ऑफिस में मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ पर परचम कुशाई के साथ साथ शोहदाए कश्मीर को खराज तहसीन पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रैली के दौरान मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उधर डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर का मंडी सादिकगंज का अचानक दौरे के दौरान सफाई और शहरी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत जारी की, कहा शहर में सफाई के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जाए, निकासियाब के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि शहरियों को बेहतर और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। अहले इलाका ने ज़िली इंतजामिया के इस दौरे को खुश आइंदा करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि जारी करदा अहकामात पर जल्द अमल दरामद होगा। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में कई रोज से सैलाबी पानी रिहायशी आबादियों के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की अमदादी सरगर्मियां बिला तातुल जारी हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फिरोजवाला के कई रिहायशी इलाके पिछले चंद दिनों से सैलाबी पानी की जद में हैं, जिसके बायस घरों और गलियों में पानी दाखिल होने से सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। अल खिदमत डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन इजाजुल्लाह खान के मुताबिक डिजास्टर टीमें और रजाकार पहले दिन से ही मैदान में मौजूद हैं। अब तक 13,228 से ज्यादा मुतासिरीन में पका हुआ खाना और 11,358 से ज्यादा अफराद में पीने का साफ पानी तकसीम किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 6 कश्तियों के जरिए 852 अफराद को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया गया, जबकि 5 फ्री मेडिकल कैंपों के जरिए 586 मरीजों को मुफ्त अद्वियात और तिब्बी मुआयना फराहम किया गया। अल खिदमत फाउंडेशन के मुताबिक 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का निजाम मजीद मजबूत किया गया है और इस वक्त मुल्क भर में 46 डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर्स फाल है। सदर अल खिदमत सेंट्रल पंजाब इकरामुल हक सुबहानी ने बताया कि इस साल अब तक 1800 से ज्यादा अफराद को इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत दी जा चुकी है। अल खिदमत फाउंडेशन ने अज़म जाहिर किया है कि मुतासरा खानदानों की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि साहिब सरवत अफराद से भी इस नेक मकसद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत बेरोजगार दही किसानों में अलाटमेंट सर्टिफिकेट्स की तकसीम मुनक्किद हुई है। अभी आपको बताएं कि बस्ती मलूक में योम शोहदाए पुलिस के मौके पर हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन उम्मीदवार MP हल्का PP 221 रफीक चौहान ने थाना बस्ती मलूक का दौरा किया, जहां उन्होंने पुलिस अफसरानों और एहलकारों से मुलाकात करते हुए शोहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। तफसील बताएंगे वहीद अख्तर। जी बिल्कुल, आज थाना बस्ती मलूक में शोहदाए पुलिस के लिए हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन रफीक चौहान साहब की तरफ से एक तकरीब का इनकार किया गया है। मजीद हमारे साथ वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। शोहदाए पुलिस मनाने का मकसद है कि पंजाब पुलिस
हमारे लिए खिदमत के लिए 24 घंटे हर टाइम रोडों पे फुटपाथों पे होती है, हमारी हिफाजत करती है। हमारी हिफाजत के दौरान ही वो शहीद होते हैं। इसलिए मैं अरसा 15 साल से चौदाई पुलिस मनाता हूँ और अरसा 2 साल से थाना बस्ती मलूक से मना रहा हूँ। जी बिल्कुल, इनके इस हवाले से ये कहना था कि ये पुलिस एहलकार जो पुलिस अफसरान होते हैं ये दौरान वारदात या दीगर सिक्योरिटी के इदारों जो होते हैं हमारे लिए ही अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो इसको खराज तस्लीम पर पेश करने के लिए मैं तकरीबन 15 साल से ये शोधा पुलिस का तकरीब का इनकार कर रहा हूँ और इंशाल्लाह एंड अब ये जारी रहेगा। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में तलीमी बोर्ड ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया। यमुना सलाहुद्दीन पहली पोजीशन पर बराजमान। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद ने मैट्रिक सालाना इम्तहानात के पोजीशन होल्डर तलबा के नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया है। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में खुशी की लहर दौड़ गई है। नताइज के मुताबिक तालिबा यमुना सलाहुद्दीन ने मजमूई तौर पर 1191 नंबर हासिल करके जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि रमीन फातिमा 1190 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। इसी तरह रईफ अब्दुल अहद ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। बोर्ड में तीसरी पोजीशन अपने नाम की। इस शानदार कारकर्दगी पर असातिज़ा और वालिदैन की जानिब से पोजीशन होल्डर बच्चों को मुबारकबाद पेश की जा रही है। फैसलाबाद के चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर राना बिनियाबिन तलीमी बोर्ड में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि जिस मकसद के लिए आप लोगों को भी तकलीफ़ दी हमने, और वो मकसद है आज कि हमने जो हमारे मैट्रिक का 26 का जो था फर्स्ट एनुअल का रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है, सुबह उनके पोजीशन होल्डर्स की आज हमने अनाउंसमेंट करनी थी। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मीडिया पर्सनस का मशकूर हूँ जो कि आपको बाहर रोड की सिचुएशन पता ही है कि उस हालत में आप लोगों ने मैनेज किया और हमारी एक कॉल पे आप लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे। तो मैं बीइंग चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, आज हमारे जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनकी हम अभी अनाउंसमेंट करने जाएंगे। और इसमें सबसे पहले तो मैं अपनी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा और मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हया साहब और अपने तमाम बोर्ड का जो स्टाफ है उनकी तरफ से जो बच्चों ने जिन बच्चों ने पोजीशन ली हैं उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके इंस्टीट्यूट्स को और उनके उस्तादा को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये उनकी अनथक मेहनत का नतीजा है कि एक मेरिट और ट्रांसपेरेंट और जो है आप कह लें कि एफिशिएंट सिस्टम के थ्रू जो है वो स्क्रीनिंग के थ्रू जो वो इस स्टेज पे जो है उन्होंने अपनी पोजीशन ली है। तो ओवरऑल अगर मैं इस सारे आप कह लें फर्स्ट एनुअल जो मैट्रिक का हुआ है एग्ज़ाम 2026, इसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो हमारे पास 1,94,861 जो स्टूडेंट्स थे वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए। इनमें साइंस ग्रुप में जो थे वो मोर देन 84,000 स्टूडेंट थे बॉयज़ में, और इसी तरह गर्ल्स के ग्रुप में जो थे वो 71,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। दूसरी तरफ अगर हम जनरल ग्रुप में देखें तो उसमें मोर देन 10,000 स्टूडेंट जो थे वो बॉयज़ थे और मोर देन 25,000 स्टूडेंट जो थी वो गर्ल्स थी। अब इसके बाद हम पोजीशंस की तरफ आते हैं। तो जो ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन हासिल की है जिस बच्ची ने, उसका नाम है जी उम्ना सलाहुद्दीन और डॉटर ऑफ मोहम्मद सलाहुद्दीन। ठीक हो गया जी। इनके मार्क्स हैं 1191, ये ओवरऑल कैटेगरी में, और इनका जो स्कूल है वो है द सिटी ग्रामर स्कूल 41B न्यू सिविल लाइन फैसलाबाद। इसी तरह ओवरऑल जो सेकंड पोजीशन हासिल की है वो है जी रामीन फातिमा, उनके मार्क्स हैं 1190 और डॉटर ऑफ मोहम्मद असगर अली, और इनका जो इंस्टीट्यूट है वो है डिविजनल पब्लिक स्कूल रजाना रोड समुंदरी। और ओवरऑल जो थर्ड पोजीशन हासिल की है ओवरऑल ग्रुप में, उसमें जो है जी वो मोहम्मद राइफ अब्दुल अहद हैं, और ये इनके फादर का नेम है जी शहजाद अहमद जमाल, और इनका जो इंस्टीट्यूट है वो है जी इमाम पब्लिक बॉयज़ हाई स्कूल 75 JB सोहल फैसलाबाद। तो ये ओवरऑल जो पोजीशंस थी ग्रुप की वो थी। अब हम आते हैं साइंस ग्रुप में। साइंस ग्रुप में बॉयज़ में जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद रैफ अब्दुल अहद, और
ایمان پبلک بوائز ہائی اسکول ان کا اسکول ہے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا, اور ان کے مارکس جو ہیں 1189 ہیں. اسی طرح سائنس گروپ بوائز میں جو سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے وہ محمد علی کلیم ہے, فادر نیم ان کا محمد اسرار کلیم ہے, اور یہ ڈویژنل پبلک اسکول فار بوائز ٹوبا ٹیکسنگ ان کا جو تھا وہ انسٹیٹیوٹ تھا, اور ان کے مارکس جو ہیں وہ 1184 مارکس ہیں. تھرڈ پوزیشن پہ بوائز میں ہمارے پاس 3 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ایکول مارکس ہیں, اور وہ مارکس ہیں 1181. ان میں موہت ندیم ہے جو کہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول پیپلز کالونی نمبر 1 فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد محمد حسیب ہیں جو محمد علی جناح بوائز اسکولز پینسرا بہانا روڈ سے بلانگ کرتے ہیں. اس کے بعد محمد عبداللہ ہیں جو کہ فرحان ماڈل اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ سے بلانگ کرتے ہیں. اسی طرح سائنس گروپ میں اگر ہم گرلز میں دیکھیں تو جو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ امنا صلاح الدین ہے, ان کے 1191 مارکس ہیں. سٹی گرامر اسکول نیو سول لائن فیصل آباد سے وہ بلانگ کرتی ہیں. اس کے بعد سائنس گروپ سیکنڈ میں جو اسٹوڈنٹ آئی ہیں وہ رامین فاطمہ ہیں, ان کے مارکس 1190 ہیں. شی آلسو بلانگ ٹو ڈویژنل پبلک اسکول رجانہ روڈ فیصل آباد سمندری. اس کے بعد جو تھرڈ پوزیشن ہے, تھرڈ پوزیشن میں فیمیلز پہ 4 کینڈیڈیٹ ہیں جن کے ایکول مارکس آئے ہیں 1188. ان میں جو آپ کہہ لیں کہ فرسٹ نمبر پہ ہیں وہ ہیں زمر فاطمہ, اور یہ لیبارٹری گرلز ہائی اسکول یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہیں. اس کے بعد رابیل فاطمہ, یہ دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک گرلز ہائی اسکول سول لائن ایریا فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہیں. پھر خیرت فاطمہ ہے جی, یہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم ہے یہاں سوسا روڈ فیصل آباد, اس انسٹیٹیوٹ سے بلانگ کرتی ہیں. پھر ہے جی دانیہ رسول گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سمندری سے بلانگ کرتی ہیں. تو سائنس گروپ کے بعد ہم جنرل گروپ کی طرف آئیں تو بوائز میں جنرل گروپ میں محمد سائم علی ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. ان کے مارکس ہیں 1089, اور یہ عثمان بلیسنگ ہوم ہائی اسکول افغان آباد سے بلانگ کرتے ہیں فیصل آباد سے. اس کے بعد سیکنڈ جو پوزیشن حاصل کی ہے جنرل گروپ میں بوائز میں وہ ہیں جی محمد, اور ان کے مارکس ہیں 1082, اور یہ منہاج القرآن ماڈل سیکنڈری اسکول گلفشاں کالونی فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ پوزیشن جنرل گروپ میں آئی ہے وہ عبد القدوس ہیں, گورنمنٹ اسلامیہ سیکنڈری اسکول ٹوبا ٹیکسنگ سے ان کا تعلق ہے. گرلز میں اگر ہم دیکھیں جنرل گروپ میں تو گرلز میں جو پہلی پوزیشن آئی ہے وہ انشرا ہے, ان کے مارکس جو ہیں وہ 1133 مارکس ہیں. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شیخ کالونی فیصل آباد سے سبلانگ کرتی ہیں. اس کے بعد 1119 مارکس جو ہیں وہ سیکنڈ پوزیشن پہ جو فیمیل ہیں رابعہ طارق ان کے ہیں, یہ شراز سائنس اسکول ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے پیر محل ٹوبا ٹیکسنگ سے بلانگ کرتی ہیں. اور جنرل گروپ میں جو تھرڈ پوزیشن ہے وہ کنزا علی کی ہے, گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ٹوبا ٹیکسنگ سے بلانگ کرتی ہیں. تو یہ ہماری بورڈ کی جو تھی ٹوٹل پوزیشنز تھی جو کہ فرسٹ اینول 2026 میٹریکولیشن کا رزلٹ تھا. اور اینڈ پہ جو ہے وہ اس سارے پروسیس میں جو ایک چیز کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اس میں یہ ہے کہ یہ جو سارا ایگزامینیشن کا سسٹم ہوتا ہے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے, اور اس نیشنل رسپانسبلٹی میں ہر اسٹیک ہولڈر نے اپنا جو تھا بھرپور کردار ادا کیا ہے. خاص طور پہ بورڈ کا جتنا سٹاف تھا انہوں نے بہت اچھی ڈیوٹی انجام دی. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی ان کا ہمیں بھرپور تعاون رہا ڈسپلن میں, لا اینڈ آرڈر میں, باقی چیزوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اور جو امپورٹنٹ پارٹ ہے میڈیا, ان کی ہمیں جہاں جہاں ضرورت ہوئی, جہاں جہاں پہ ہمیں ان کی ہیلپ کی ضرورت ہوئی, انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کوآپریٹ کیا. اور الٹیمیٹلی اینڈ پہ میں ایک بار پھر جو ہے یہ جن طلبات کا میں نے نام لیا ان سب کا جو ہے وہ دل سے مبارکباد ان سب کو پیش کرتا ہوں, اپنے ادارے کی طرف سے, اپنی جو ہے آرگنائزیشن کی طرف سے, اور اپنی گورنمنٹ کی طرف سے. اور جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں اس جو کانفرنس کو ہے وہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. اور باقی جو اوور آل رزلٹ ہے وہ ہم کل صبح انشاءاللہ 10 بجے جو ہے وہ ڈکلیئر کریں گے.